Bismillahirrahmanirrahim. Students, we have successfully completed chapter number 2 yesterday. Today I will start new chapter, chapter number 3 of first year physics. On screen you are observing that I have mentioned reduced syllabus for this chapter number 3. According to reduced syllabus, these 5 topics are included only. Rest of the topics are left by the examiner. Even you won't be asked a single MCQs in exam. First most topic is motion of two bodies connected with a string. You all have done it in your class 10, but in first year we will do it again. Second thing is momentum, and third one is law of conservation of momentum. Fourth is inclined plane, and the last is friction. You all must remember which are the topics which are included by the examiner in this reduced syllabus. I'll start with the first most, motion of two bodies connected with a string. The student, let's say this is your pulley. This circular blue circle is representing a pulley. Over this pulley, this red rope is passed over, which is connected to the both ends with two different bodies. Let's say I consider this big body as body A and this one as body B. I also consider mass of body A m1, mass of body B m2. In this my consideration, mass of body A is greater than mass of body B, so that I have written mathematically m1 is greater than m2. Whenever any body is hanged vertically, that body is attached with a string. At this point, do remember, tension in the string would be upward and weight of the body will act downward. Tension is represented with capital T and weight with W1. In the similar manner, weight of body B, that is W2, will act downward and tension in the string will act upward. Must remember, tension in the string would be same for both bodies. Why? Because both bodies are connected with a single string. The string is same for both of them. So tension would also be same, but their weights are different. You know, this body A is heavier than body B. That's why this body A will move down. While this body B will move up. Since body A moves down, among these both, tension and weight, W1 will be greater than tension. Why W1 will be greater? Because this body will move down. But in the case of body B, tension would be greater than W2. Why? Because body B is moving up.
So this much consideration is enough to study the motion of these both bodies which are connected with a string and passed over pulley. Now, one by one, I will discuss motion of body A and motion of body B. Is this diagram clear to all of you? Kindly tell me yes or no. Yes, sir. Okay. Other girls? Yes. Yes, sir. Okay. Students, now I will discuss motion of body A, then motion of body B. One by one we have to discuss, and finally we will go for their value of tension in a string and acceleration in the body. Right now I will first discuss motion of body A, then I will discuss motion of body B. Students, just focus on body A and answer me. Will it move down or up? Tell me. बॉडी है नीचे जाएगी ऊपर जाएगी? Sir, downward. डाउन जाएगी. भाई डाउन क्यों जाएगी? इस बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी. वन इज टेंशन एंड अदर इज वेट. If weight is greater, it will move down. If tension is greater, it will move up. In this case, body A moves down. That's why we can say W1 is greater than tension. Two forces are acting on this position at this point, or you can say on body A. If I wanted to calculate the net force, बेटे याद कर ले कि net force अगर आपको calculate करनी है तो आप तमाम forces में बड़ी force से छोटी force को minus करेंगे. मेरे पास जो net force है वो आएगी W1 माइनस टेंशन. बताइए क्या ये बात समझ में आई आपको? नेट फोर्स मैंने W1 से माइनस क्यों किया टेंशन को? Yes, sir. आगे समझ में. Because W1 is greater. It's thumb of rule कि ग्रेटर में से लेसर को माइनस करेंगे. नेट फोर्स बेटे फोर्स होती है F, वेट होता है mg, m1g होगा, माइनस होगी टेंशन. फोर्स की वैल्यू होती है ma, ये बन जाएगा m1a इक्वल टू m1g माइनस t. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 है. W1 की जगह M1. जी रितेश बोले क्या कह रहे हैं? W1 की जगह पे M1G कैसे आया? वेट जो है ना बेटे mg नहीं होता, w इक्वल टू mg होता है. ठीक है सर, सही है ये सर. वेट का फार्मूला है ना. नाउ आई विल डिस्कस मोशन ऑफ बॉडी बी. अरीबा मोहसिन, आपको ये फार्मूला समझ में आया जो पहला फार्मूला मैंने डिराइव किया? यस सर. बेटे मैं इसे कह रहा हूँ ये है मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1. अब मोशन में बी की जब डिस्कस करता हूँ तो देखो कि जो नेट फोर्स है वो बराबर आएगी टेंशन माइनस वेट टू. टेंशन ग्रेटर है बिकॉज बॉडी ऊपर जा रही है तो टेंशन ग्रेटर है. ग्रेटर में से लेसर को माइनस करते हैं और ये फोर्स होगी बराबर टेंशन माइनस m2 जी. वेट का फार्मूला होता है mg. तो यहाँ फोर्स ma के बराबर है तो मास m2 है. m2a इक्वल टू आ जाएगा टेंशन माइनस और ये हुआ मेरे पास m2
जी बताइए, क्लियर है ये इक्वेशन नंबर 2 भी आपको? यस सर। मैं कहता हूँ कि मेरे पास अब ये जो दो इक्वेशन आ गई है, मैं इन दो इक्वेशन को यूटिलाइज करूँ और फाइंड आउट करूँ टेंशन इन स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन को। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं कि पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, देन हम टेंशन फाइंड कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ काम कर रहा हूँ फॉर एक्सेलरेशन, या आप छोटी सी हेडिंग दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि एट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मेरे पास है m1a इक्वल टू m1g माइनस टेंशन। इक्वेशन 2 है m2a इक्वल टू टेंशन माइनस m2g। जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, या होती है? ये वाली टेंशन इस टेंशन से कैंसिल होगी क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। ये दोनों यूँ आ जाएंगे कि m1a प्लस m2a बराबर आएगा m1g माइनस m2g। यहाँ से आप अगर कॉमन ले लें a को तो m1 प्लस m2 रह जाएगा, बाहर a कॉमन आ गया। यहाँ से g कॉमन ले लें, m1 माइनस m2 हो जाएगा, g कॉमन आ गया। फाइनली यू विल गेट एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई होगा ये g से। This is your final relationship by which you can calculate acceleration produced in this motion। जी बच्चों बोलो, क्लियर है ये? यस सर। गर्ल्स क्लियर है ये Yes. बेटे? Yes, sir. ओके। अब बेटे मैं एक्सेलरेशन की बजाय मैं टेंशन कैलकुलेट करूंगा। यहाँ मैं हेडिंग लेता हूँ फॉर टेंशन। टेंशन के लिए मैं कहता हूँ कि डिवाइड करो इक्वेशन 1 को बाय इक्वेशन 2 से। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड राइट से डिवाइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से डिवाइड होगी। लेफ्ट साइड में यहाँ है m1a और यहाँ है m2a। राइट साइड में यहाँ है m1g माइनस t और यहाँ है t माइनस m2g। बेटे पहले तो ये कैंसिल करते हैं, फिर m2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ये वाला फैक्टर लेफ्ट पे आके m1 से मल्टीप्लाई होगा। तो m1 से मल्टीप्लाई होगा टेंशन माइनस m2g इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई होगा m1g माइनस t। अब ये जो m1 है ये दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह m2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ बन जाएगा m1t माइनस m1 m2g इक्वल्स टू m2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा m1 m2g माइनस m2t। ये वाला नेगेटिव फैक्टर मैं राइट पे ले जाता हूँ, ये वाला नेगेटिव फैक्टर मैं लेफ्ट पे ले आता हूँ। m1t पहले मौजूद था, प्लस आ जाएगा m2t इक्वल्स टू m1 m2g प्लस हो जाएगा m1 m2g। इन दोनों में टेंशन कॉमन है, टेंशन को हम यहाँ से कॉमन अगर ले लें तो m1 प्लस m2 बचेगा इक्वल टू, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं तो ये ट्वाइस में आ जाएगा 2m1 m2g हो जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट पे जाके डिवाइड होगा। फाइनली यू विल गेट टेंशन का फार्मूला
2m1 m2g upon m1 प्लस m2। जी बच्चों क्लियर है ये? क्लियर है। गर्ल्स क्लियर है ये? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा बेटे अब आपने करना ये है, अभी जब मैं क्लास वाइंड अप करूँगा तो आपको एक होम टास्क दे रहा हूँ। बुक में इस टॉपिक की एक तो सॉल्व एग्जाम्पल है, उसका नंबर है 3.6। इस एग्जाम्पल में आपको यही केस दिया गया है, दो बॉडीज हैं जी m1 m2, दोनों का मास गिवन है, एक का मास है 5 किलोग्राम और एक का मास है 4.8 किलोग्राम। और कहता है कि आप इसका एक्सेलरेशन और टेंशन निकालें। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। इन दोनों फार्मूलों को यूज करने के लिए आपको मास चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, वो मास आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक तो आप ये सॉल्व न्यूमेरिकल करेंगे। दूसरा, बुक के एंड में, चैप्टर के एंड में क्वेश्चन नंबर 9 मौजूद है, तो ये क्वेश्चन भी इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल है। आज मेरे पास वक्त की कुछ किल्लत थी, आई हैव टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी ऑफ माय रिलेटिव, तो मैं अपनी क्लास को यहाँ शॉर्ट करूँगा। तो ये टॉपिक मैंने आज मुकम्मल आपके लिए कर दिया है, तो काइंडली अब आप इस क्लास को जैसे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तो आपका ये काम है कि आप जाइए अपनी बुक खोलिए, वहाँ से एक तो सॉल्व न्यूमेरिकल कर लेंगे और दूसरा सेम वही क्वेश्चन नंबर 9 अनसॉल्व मौजूद है, आप उसे करेंगे। जब आप ये कर लें तो फिर 10 ईयर उठाइए, 10 ईयर में देखिए इसका कोई न्यूमेरिकल मौजूद है तो वो आप अटेम्प्ट कर लें, इसमें आपका ये एक टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। कल की क्लास में इसी का जो दूसरा केस है, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और दूसरी बॉडी वर्टिकल सरफेस पर है, वो किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे उसे वो मैं कल बताऊंगा। आज के इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है किसी को तो बेटे अभी पूछ लो। कोई क्वेश्चन करना है किसी ने? No. नो। Ariba Mohsin said no. Hitesh, do you want to ask anything? सर No. Alize Javed? Alize Javed? No, sir. नो। चलो जी, अब आप सब बच्चों को चाहिए बेटे, मैं क्लास को यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, और आप इसे पहले मुकम्मल कर लेंगे और इसके बाद ये है कि आप अपने न्यूमेरिकल्स को कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें, ठीक है जी। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।